جی السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے لائکر، میرے ویور اور میرے فین، آپ کو ناصر مدنی کا ڈھیروں سلام۔ آج میں اپنی بہت پیاری شخصیت جو میرے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر سر جی عزت مآب نشان محمد صاحب ایس وی ٹیچر، جو پورے لاہور میں بہترین ٹیچر ہونے کا ایوارڈ کا اعزاز رکھتے ہیں، ان کو یہ حاصل ہے۔ اور ہم بھی بچپن میں ان کے پاس پڑھتے بھی تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے، اور سر جی وہاں پڑھائی کے معاملے میں طبیعت بہت سخت رکھتے تھے کہ کسی بچے کی عمر ضائع نہ ہو، اس کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے ماں باپ کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ سر جی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تو آج میں لیا آیا چوک اعظم ان کو ملنے، لاہور سے وہ شفٹ ہو گئے ادھر، تو کچھ ویسے بھی ان کی طبیعت خراب تھی، تو میں نے کہا چلو میں آج اپنے ایک روحانی باپ کا پتہ لینے جاؤں۔ ویسے مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے، میرے ابو تو 22 سال ہو گئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں اپنے بچوں جیسے پیار دیا۔ ان کی محنت کے بدولت استاد اصل میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، سب کچھ اپنے شاگردوں کو دے دیتا ہے۔ استاد کی کوشش ہوتی ہے وہ حسد سے پاک ہوتا ہے، استاد میں حسد نہیں ہوتا، وہ یہی چاہتا ہے میرا شاگرد اوپر جائے، بڑے سے بڑا افسر بنے، بڑے سے بڑا ہو جائے۔ تو آج میں سرجیوں کے پاس آ کر اپنے وہ باپ کی شکل میں ایک روحانی باپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ میرا یہاں ٹیچر سر جی کے پاس آ کر آپ کو پیغام دینا یہی ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ استاد بہت بڑا محسن ہے اس دنیا میں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ تو ٹیچر انسان کے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو میں تمام پاکستان کے حکمران بالا سے اپیل بھی کروں گا کہ ٹیچر حضرات جب ریٹائر ہو جائیں تو ان کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک ایسا کارڈ ہونا چاہیے کہ جس گاڑی میں بیٹھے ہوں، جہاں رکیں، یہاں اپنا تعارف کرائیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک پروفیسر ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ سلوٹ کریں، ان کو ٹریفک وارڈن ہو، پولیس ناکے پہ ہو تو ان کو سلوٹ کریں، اور سلوٹ کرنا بھی چاہیے۔ آئی سلوٹ یو سر نشان صاحب، آئی لائک یو، آئی مس یو۔ ہم بچپن میں جو آپ سے پڑھا آج ہمارے کام آ رہا ہے، ہم آج بھی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اور میں اپنے چاہنے والوں کو، حکمران بالا کو بھی کہتا ہوں کہ ٹیچر حضرات سے ہی پڑھ کے سبھی وزیر اعظم بنتے ہیں، ٹیچر سے پڑھ کے ہی سبھی دنیا میں آفیسر بنتے ہیں۔ تو میں سبھی اپنے چاہنے والوں سے اور حکمران بالا سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں سے گزرو، اگر رستے میں اپنے استاد کا گھر آ جائے تو ان کے پاس 2 منٹ رک کے جایا کرو، تمہیں اپنی بچپن کی یادیں بھی آئیں گی اور ان کے دل کو بھی خوشی ہوگی کہ میرا ایک بیٹا آج ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ تو اپنے عروج میں، اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے شاگرد نے عروج میں مجھے یاد رکھا۔ تو میرے چاہنے والوں سے اپیل ہے کہ اپنے استاد کی عزت کریں۔ جو قومیں اپنے استاد کی عزت نہیں کرتی وہ ترقی نہیں کرتی۔ استاد تمہارا ایک روحانی باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ جو اس نے زندگی میں تجربہ کیا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اپنے شاگرد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ملتے ہیں سر جی نشان صاحب سے۔ یہ میرا کیمرہ مین ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ جی ناظرین، پوچھتے ہیں ہم استاد جی سے کہ مدنی صاحب کا اسکول میں کیسے تھے؟ السلام علیکم۔ مدنی صاحب بھائی شروع میں جو بچے تھے یہ ذہین بچے تھے، تو مجھے بچے اکثر کہتے تھے کہ یہ تو مولویاں کو تقریر کرتا ہے، تو میں اس سے آخنا بھائی آج تو تقریر سنا، 40-47 کی بات ہے۔ تو ہم اسکول میں جب چھٹی ہوتی تھی ہم کہتے منشی بندگی مولوی سلام، جو مسلمان ماسٹر کو سلام اور جو ہندو کو بندگی کہتے ہیں، اور اسکول کے باہر رہتا کہ یہی بات کہتے ہیں۔ تو ہوں تو منڈے ماسٹر کٹتے کی ٹائم ہے، فرق پی گیا۔ وہ بچہ نہیں ادب کر رہے،
इस्लाम कर दे मुंशी बंदगी मौलवी इस्लाम। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? भाई गल सुन पुत्र गल है ना मदनी साहब, मैं तो रिटायर होने तो बाद मेरा लगाओ पहला जो मैं ट्यूशन कोई नहीं कभी पढ़ाई, तो मैं तो स्कूल ही पढ़ाना बच्चा जो पढ़ा देना वो डोलता नहीं सी। तो बाकी रही गल मैं तो जिम्मेदार बंदे बड़ा मेहनत भाई ना बड़ा चाह मैं तो थे भाई की, लेकिन मैं यार ना मेहनत करो, मेहनत जो भी करेगा मेहनत नाली कि जाज को अगर पढ़ना तो बेटा मेहनत करें। उनके उस्ताद के बारे है, उनके गुस्से में है दिल सोजी मुलामत में प्यार, मेहरबानी करते हैं ना मेहरबानों की तरह। सर जी आपका कोई यादगार टीचर साथी जो आपको याद होता हो? हाफिज अब्दुर्रहमान साहब हैं, वो कानी 9 में एक थे अरबी टीचर से, तो अरबी और गन मुझे वो अपने बेटे को तरह समझे बहुत मुझसे अच्छा प्यार करते हैं। हाफिज अब्दुर्रहमान का नाम। लो नाजरीन, ये सरजियों की रिटायरमेंट के बाद मसरूफियत और उन्होंने अपने साथियों को भी मिस किया। इसी तरह आपसे भी मेरी अपील है कि आप भी अपने साथियों को याद रखा करो, जो फौत हो जाए उनको दुआओं में याद रखा करो, जो ज़िंदा हों उनकी खुशी गमी में उनके साथ शरीक रहा करो। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मैं आखिर में यही शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। मियाँ साहब फरमाते ने लखां बेरे बेरी नूं लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पकन लाल मुहम्मद ते ओहो ही खांदे वट्टे, ते मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे। नेकी करन वाला बंदा मुड़ बेरी बन जावे। असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्लां तक नहीं भुलदे, बेनस्लां नाल नेकी करिए ते ओ पुठियां चालां चलदे। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। सर जी आप किस सन में हज करके आए? 2001 में गया। सर जी 2001 में हज करके आए, तो मैं इंशाल्लाह उनके सामने ये शेर पढ़ देता हूँ। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया, बन कमली वाले दा यार मियाँ, बन कमली वाले दा यार मियाँ, बन कमली वाले दा यार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ, इनू दम दम नाल पुकार मियाँ, ए नाम नबी नाल जुड़े। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। मेरे सरजियां दे पोतरे बैठे ने बाहर, मैं सदके जावां अपने सरजियां तो पोतरियां च दोतरियां दी बहार वेख रहे ने। मिल के पढ़ना है। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने रिया। असी बड़े खुश नसीब हैं, सरजियां दे पोतरियां च बैठे हैं, असी निके निके सरजियां को पढ़े हैं। शेर बड़ा कीमती है। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया। पईयां मक्के विच दुहाइयां ने, पईयां मक्के विच दुहाइयां ने, दाइयां लैन नबी नू आइयां ने, उस दाई ने शाना पाइयां ने जिस सोने नबी नू पढ़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया।
साडा मुर्शद सोना अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है। ओदे जान कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शद पढ़दी है, असा मुर्शद चुन के पढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई है, चन शहर मदीने चढ़िया। सर मदनी साहब ने ये जो नज़म पढ़ी आपको कैसे लगे शेर? अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। एंड पे कोई ना दुआ जो है ना मैं दुआ करूं अल्लाह आपको तरक्की दे, आपको नेक औलाद दे और आपका अपने जो बेहतर है वो अल्लाह करे। ये आज पाकिस्तान में जितने ये बच्चे हैं ये मोबाइल दोस्त हो गए, मगर हमारे टीचर से आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ जिनसे हम पढ़े, वो हमारे टीचर किताब दोस्त इतने हैं कि उनके पास उन्होंने 1957 में मैट्रिक की और आज हम उनसे मिलने के लिए लिया ज़िला तहसील करोल डाल ईसन में हम मिलने आए। वो लाहौर से लिया शिफ्ट हो गए थे, तो मैं देखकर अपने नाज़रीन तक ये पहचाना चाहता हूँ कि हमारे जो असातिज़ा कराम थे पहले वो किताब दोस्त कितने थे। सर निशान साहब की ये मैट्रिक की किताबें, ये रियाजी की मैथ की किताब है, ये दूसरी मेरे पास उनकी किताब, और जिल्द भी बिल्कुल ठीक है, 1957 की ये किताबें हैं और उनके सफ़े, उनके वर्के, उनकी जिल्दें बिल्कुल अपनी असली हालत में और कोई वर्का बसीदा नहीं। हम अपना बैग कहाँ छोड़ देते हैं, किताबें कहाँ पड़ी होती हैं, घर में आते ही बस्ता फेंक देते हैं, जैसे पांडी अपना जो है तो वज़न ज़मीन पे पटकता है, उसी तरह हम आकर किताबें ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो मेरा ये न्यू नस्ल को पैगाम है कि ये मैट्रिक की किताबें 1957 में सर जी ने मैट्रिक की और 1968 में हमारे स्कूल में ये टीचर आए और 31 साल सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर में इन्होंने गुजार दी। नाज़रीन, ये बताने का मकसद ये है कि ये सारी किताबें 1957 की, यानी उस दौर में इन्होंने मैट्रिक की। अब हमारे जो बच्चे ये मोबाइल संभालना जानते हैं, उसके लिए कवर ढूंढते हैं, कभी इसका टच ना ख़राब हो जाए, खराश ना पड़ जाए। तो ये हैं हमारे टीचर सर निशान साहब, अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये 1963 में उनके पास किताब आई, हाँ जी, तो 1963 की ये किताब इनके पास महफूज है और जिल्द भी महफूज और सफ़े भी महफूज। तो लम्हा फ़िक्री है कि हम अंग्रेज़ों की मिसालें देते हैं। हम ये फ़ारसी की किताब है सर जी के पास, ये 1957 की किताब फ़ारसी की हैं, तो ये भी उसी हालत में देख लें आप। तो मैं पैगाम देता हूँ कि हम यूरोपीय मालिक की मिसालें देते हैं। तो आपने कभी देखा है कि गोरा जहाँ बैठता है उसके पास एक मोबाइल हो तो एक किताब होती है, तो वो किताब दोस्त है, जहाँ बैठता है वो किताब पढ़ता है। मगर हम क्या करते हैं, हम जिधर जाते हैं बस गाड़ी में बैठे तो मोबाइल खोल लिया। पहले लोग सफ़र करते होंगे सी तो ना गड्डी च किताब खोल के बह जाना, तो हुण गड्डी च बहंदे हैं जनाब मोबाइल खोल। पहले लोग पुछते सी तू कित्थे जाना, तू कित्थों आया है, तू किधर जाना है, तो हुण लोग गड्डी च बहंदे मोबाइल का डाटा ऑन करके तो शुरू हो जाते हैं टिच 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 टिच। फिर मावां दी मेरे पुत्त नूं होश नहीं आउंदी, होश घटा है, सारी रात सारा दिन मोबाइलों ते लगे रहिंदे हैं। हाँ जी, किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दुध दी चाह। तो हुण ना कोई रल के बहंदा है। अगे मुंडियां ने असीं इकट्ठियां बह के किताबां लैके बाहर पैलियां 'च बह के पढ़ना,
ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ चले जाना मुंडियां दे नाल। तो मैं सर जियों को आई सलूट यू कहता हूँ कि सर जी आपने ये किताबें 1957 की संभाल के रखी और न्यू नस्ल को पैगाम दिया है कि तुम दिखाओ, तुमने अपनी मैट्रिक की किताबें संभाली हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए। आज मैंने भी ये बड़ी कमी महसूस की है कि जो सरजियों के पास ये किताबें मैट्रिक की देखी, हमारे पास तो वो किताबें महफूज नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे दिखाएं। मगर मैं चाहता हूँ जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले, मैं उनको पैगाम दे दूँ कि आप अपनी ये कीमती नवादरात जो आपकी ज़िंदगी से चीज़ें मुंसलिक, इनको संभाला करें और कल आने वाली नस्ल आपको भी याद करेगी ये मेरे दादा की हैं, ये मेरे अब्बू की चीज़ें। जैसे आज सर निशान साहब ने अपने बच्चे को बोला कि मेरा बेटा आया है नासिर मदनी, तो बतलाओ इनको दिखलाएं किताबें। तो अलमारी से निकाल के मेरे सामने, ये अलमारी ज़रा खोलना, ये अलमारी में सर जी ने किताबें रखी हुई अपनी, खोल दो सर। तो इधर किताबें पढ़ी हैं ऊपर और भी, तो सर जियों ने ये मुझे मैट्रिक की दिखाई। तो इसलिए नाज़रीन आप भी अपने घर में अपनी ज़िंदगी से मुंसलिक चीज़ें संभालें और किताब दोस्त बने। जैसे हम अपने मोबाइल पर रोज़ाना इनबॉक्स खोल के अपने मैसेज देखते हैं, इसी तरह मेरे चाहने वालों को पैगाम है कि अपनी किताबें पढ़ा करें। किताब इंसान को ऊंचा करती है। अपना इल्म लाएं, किताब पढ़ें, मताला करें, जिधर बैठें कोई ना कोई किताब पास रखें, सफ़र करें तो वो पढ़ें। ये नावल, ये डाइजेस्ट, ये दुनिया की किताबें पढ़ना आप छोड़ें और अपना काम सीधा रखें। आप जो काम करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की की मनाजिल तय करना चाहते हैं, तो आप किताब दोस्त बने। खुदा के लिए ये जो अलमारियों में हमने जूते के लिए जगह रख ली और किताबें फुटपाथ पे आ गई हैं, इस वास्ते मेरा पैगाम है मेरे चाहने वालों को कि खुदा के लिए आप किताब दोस्त बन जाएं। तो सर जी आप तलबा को क्या पैगाम देंगे ये किताबों के हवाले से कि किताब दोस्त बने? भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपनी किताब पढ़ो और बार बार पढ़ो और मजलिस में बैठ कर नहीं पढ़ो। मजलिस में बैठ कर बच्चे पढ़ते हैं, मजलिस में बैठ कर नहीं पढ़ा जाता, अकेले बैठ कर पढ़ो और अपना मेहनत करो, जैसे तवज्जो से पढ़ें। जी नाज़रीन कितनी खूबसूरत बात सरजियों ने बताई है अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की कि आप अगर मताला करना चाहते हैं तो अकेला बैठ कर पढ़ें, किताब पे नज़र रखें, बार बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया मत कीजिए, मोबाइलों पे टाइम कम दें, अपने माँ बाप का पैसा जो है उसको हलाल बनाएं। उन्होंने आपके लिए खर्च किया है कि आप पढ़ जाएं, तो इसलिए अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरें। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाजरीन ये हमारे सर निशान साहब से हमें एक और ख़ूबसूरत बात मिली है उनकी ज़िंदगी के तजर्बे की, ये टीचरों के हवाले से है। जो टीचर अपने आप को एक कामयाब उस्ताद बनाना चाहता है, जैसे कि सर जी को अवार्ड मिला पूरे लाहौर में बेहतरीन टीचर होने का, वो अवार्ड उनके पास आज भी महफूज है। 500 रुपया उस दौर में उनको मिला, 500। तो ये टीचर हजरात के लिए हैं जो अकेडमी में, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि सर जी ने अपनी ज़िंदगी की एक डायरी लिखी, कौन से सन में मैंने कौन सी क्लास को पढ़ाया और उस क्लास में किस को मॉनिटर बनाया और कौन से मैं अपने मजमून पढ़ाता था और कौन से पीरियड लेता था। सर जियों ने उनके सन लिखे और अपनी याददाश्त महफूज करके टीचरों को ज़िम्मेदारी बख्शी है कि तुम भी इस तरह ज़िम्मेदार इंसान और ज़िम्मेदार टीचर बने। हाँ, ज़िम्मेदार टीचर होने का सबूत दें। ये सरजियों के ने मुझे एक डायरी दी, उसमें लिखा है जमात वर क्लास इंचार्ज सर 1968 से लेकर 69 तक। हाँ जी, 1968 से लेकर 69, 70, 71 तक। हाँ जी, 2001 तक सरजियों ने ये बात मुझे बताई। शशम सी, मोहम्मद लियास वल्द अली गोहर, ये एक नाम मैं पकारूंगा कि इन्होंने शशम में, अफ्तम में, हष्टम में और सरजियों ने नहम, दसम, जितनी क्लासों की ये डायरी मेरे सामने की है ना, इसमें मुझे बतलाने का यही मकसद है कि सन 79, 78, 77, 76, 75, 74 और 73, 72 और कितने सालों की डायरी है। 1999 तक सर जी ने 2001 तक अपनी डायरी जो है टेबल सालाना आपने टाइम टेबल भी लिखा हुआ।
तो मैं ये टीचरों से अपील करता हूँ, आज के जो न्यू नस्ल के टीचर हैं, क्योंकि ये जदीद तरीके से पढ़ाते हैं, तो सर जियों ने तो अपनी ज़िंदगी की ये पूरी डायरी इसमें लिख दी है, सन भी लिख दिया और टीचर भी लिख दिए और शागिर्दों के नाम भी लिखे हैं कि जो उनके साथ ज़्यादा करीबी थे और वो क्लास में मॉनिटर थे। तो आपसे भी मैं अपील करता हूं कि आप भी इतना तालीम से लगाव रखें कि अपनी ज़िंदगी की पूरी डायरी महफूज बनाएं, और जब डायरी महफूज होती है तो वह इंसान के लिए एक यादगार साबित होती है। ये कितनी प्यारी डायरी लिखी है, 1983-84, तो ये मैं 84-85 में पैदा हुआ हूँ, तो सर जी ने 1983-84 में जो है रियाज वल्द करामत, यामीन वल्द असगर अली, इनको पढ़ाया। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये सरजियों की मेहनत जो है 1983-84, ये देखें डायरी सारी लिखी और उनके हाथ की लिखी हुई लिखाई, ये किसी से नहीं लिखाई, तो आज तक वो डायरी ये महफूज है। तो अल्लाह इनको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, ऐसे काबिल इंसान काबिल उस्ताद सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह इनकी काबिलियत कबूल फरमाए, इनकी मेहनत कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, ये हमें सरजियों के पास आकर उनका जो है ना 1957 और 1958 के दरमियान मैट्रिक का जो ग्रुप फ़ोटो है, जैसे हम फ़ोटो सेशन करते हैं, उस दौर में जब सरजियों ने मैट्रिक की तो ये अपने क्लास फेलो और उस्ताज़ा के साथ सरजी का ग्रुप फ़ोटो इन्होंने इतनी अच्छी हालत में ये तस्वीरें संभाल के रखी हुई, और ये इनके तलबा जो इनसे फैज़ याब हुए, उन्होंने मैट्रिक में सरजियों को ये अवार्ड दिया। तो मैं आपसे भी अपील करूँगा कि इस तरह अपने बच्चों के लिए तुम भी अपनी कामयाब ज़िंदगी के लम्हात महफूज करें। और मैं भी बड़ा खुश हुआ हूँ अपने उस्ताज़ कराम से मिल के, अपने उस्ताज़ ग्रामी से मिल के, तो मुझे भी इनसे कई नसीहतें और कई आज मालूमाती चीज़ें मिली हैं कि जो मैं भी इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए कुछ महफूज करूँगा और उनके लिए कुछ डायरी में लिखूँगा कि कल वो भी अपने वालिद गुरामी की बातें जो मेरी ज़िंदगी में मुझे कामयाबियाँ मिली वो मैं नोट करूँगा और मेरे बच्चे भी किसी को दिखाएंगे, जिस तरह सर जी ने आज मुझे दिखाई हैं। इसलिए मैं आपको पैगाम देता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को महफूज करें और उनको आम ना जानिए। ज़िंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, गई जवानी मुड़ ना आवे भावें लाख खुराकां खाइए। ये सियानों ने बात ऐसे की है कि इंसान से ज़िंदगी में कामयाबी भी मिलती तो वो दोबारा लम्हा नहीं आता, जवानी भी दोबारा नहीं आती। तो इसी तरह हर ज़िंदगी का वक़्त जो है ना वो गुज़र जाता है। बस ज़िंदगी में एक बात याद रखना, ज़ाया करने से पहले ये सोचना कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। जब ये बात याद रखोगे ये वक़्त भी गुज़र जाएगा तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। इसको आप कीमती लम्हा समझें। ये सरजियों की मेहनत मैंने आपके सामने पेश की है। उन्होंने अपनी किताबें, उन्होंने अपनी पिक्चरें, उन्होंने अपने अवार्ड संभाल के रखे। और सरजियों ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही है कि मैंने अपने बच्चों की, पोतों की, नवासों की, बेटों की तारीख़ पैदाइश सभी लिखी हुई, और जो जो फौत हुआ उसकी वफ़ात, उसकी पैदाइश, ये है अपने ख़ानदान से मोहब्बत। रिश्तों का तकद्दस पमाल मत कीजिए बल्कि रिश्तों को इज़्ज़त दीजिए, अपनों को इज़्ज़त दें, अपनों को अपनी डायरी में महफूज करें, अपनों को अपने दिलों में महफूज करें, अपने दिलों में रखें। कपड़ा फटे तरोपा लगदा, दिल फटे किस सीना, ते सजना बाज मोहम्मद बख्शा की मरना की जीना।